Good morning to all. Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, how are you? I am fine. And in this lecture, just we are going to solve. We are going to discuss actually. I think the mean value theorems. And I think in the last lecture, I think only one lecture was given. And in that lecture, just we had discussed the statement and the geometrical interpretation of these two theorems, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. Okay, and I think we had solved some questions also. I think one or two questions were solved regarding these two theorems. Okay, so I think in this chapter only two theorems are there and some questions needs to be solved using the concept, using the properties of these two theorems. Okay, and some function will be given, just you have to verify this function will satisfy the Rolle's theorem and the Lagrange's mean value theorem respectively. Just you need to prove this thing. Okay, and for proving actually this, for getting this proof, just whatever the function will be given in the question, that should satisfy the properties, that means the characteristics of this particular functions, particular theorems. Okay, so at first you need to remember the statement of this particular theorem, Rolle's theorem, and this Lagrange's mean value theorem, and one by one you need to verify whether this function, whether the given function will satisfy these properties or not. Okay, so just write the first question. Fx equals to mod x, fx equals to mod x, fx equals to mod x on minus 1 comma 1, fx equals to mod x on minus 1 comma 1. Okay, discuss applicability of Rolle's theorem. That means this function is given and you need to verify whether this Rolle's theorem is applicable for this particular function or not. Okay, so I think for actually getting this applicability of this Rolle's theorem, I think all the statements and all the characteristics of the Rolle's theorem should be satisfied by this given function as well. Okay, so given fx equals to mod of x on minus 1 comma 1. Okay, so I think this if you have the polynomial function, then I think you used to get the direct concept about the continuity and the differentiability. Polynomial होने से तो डायरेक्ट आपको मिल जाता है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट. पोलिनोमियल जो है डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, बट दिस मॉड फंक्शन, it is not the polynomial actually, it is the mathematical operatic माने function. Okay, so that means mod x ये जो है इस given interval में continuous है कि नहीं, differentiable है कि नहीं, we need to check these things by using this continuity differentiability concept, LHL and RHL for continuity and LHD RHD for differentiability. We need to check this thing. So before checking this thing, as you all know, this modulus function can be written as plus x when x greater than 0, minus x when x less than 0. Okay, these two parts are there for the modulus function. Now, continuity. Okay, at x equals to 0 में ही हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, because x less than 0, x greater than 0 is given, and most importantly this x equals to 0 is lying in this interval which is given in the question. ये जो 0 है वो given interval में lie भी करता है, तो 0 में हम लोग continuity तो चेक ही कर सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, x equals to 0 में हम लोग continuity चेक कर रहे हैं. LHL limit h tends to 0 f of 0 minus h. Okay, so that means limit h tends to 0
f of 0 minus h, that means less than 0 case. For less than 0, I think this function should be used, minus x. That means माइनस x की जगह माइनस h पुट करना है, ठीक है. ओके, सो दैट मीन्स लिमिट h tends to 0, h answer is 0. Okay, similarly this RHL, limit h tends to 0, f of 0 plus h, that means greater than 0 case. So I think for greater than 0 function is what, this one plus x, that means plus h. ये भी आंसर 0. So for this continuity concept, we are getting this idea that this given function is continuous at x equals to 0. Continuous है, x equals to 0 में continuous है. Now let's check about the differentiability, whether it is differentiable or not. Okay? So continuity हो गया, तो just write this statement: fx equals to mod x is continuous at x equals to 0, which is belongs to this given interval -1, 1. Okay, continuous proof हो गया. Now it's time to check the differentiability. Okay, continuous तो मिल गया, अब differentiability देख लेते हैं. Now LHD, limit h tends to 0, f of 0, LHD है ना, that means less than 0 case. That means f of 0 minus f of 0 minus h by h. और RHD क्या होता है, 0 से ग्रेटर वाला केस. That means limit h tends to 0, 0 से ग्रेटर मतलब 0 plus h minus f of 0 by h. ठीक है, तो यहां पर जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 केस के लिए fx डिफरेंट है, ठीक है. तो लिमिट h tends to 0, so f of 0 मतलब 0 में कितना होगा, ये जो है ये इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0, ये भी तो पार्ट है ना मॉड्यूलस का, ठीक है. तो f of 0 जो है ये LHD, दैट मीन्स x लेस देन 0 केस. तो x लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है. ये फंक्शन fx इक्वल्स टू माइनस एक्स. तो f ऑफ 0 क्या होगा, माइनस 0, दैट मीन्स 0 ही होगा. माइनस f ऑफ 0 माइनस एच, दैट इज माइनस ऑफ ये माइनस एक्स तो पुट करना है ना. तो माइनस एक्स के जगह में देखो माइनस एक्स, ठीक है. अब x के जगह में माइनस एच पुट करना है, देखो बाई एच, है कि नहीं है. सो दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच बाई एच, दैट मीन्स -1. ओके, और यहां पर जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस एच, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस x यूज करना है. That means plus h minus 0 by 8. That means यहां पर +1 आ रहा है. तो यहां पर देखो LHD और RHD सेम नहीं आ रहा है. So that means fx equals to mod of x is not differentiable. Differentiable तो नहीं आ रहा है, continuous आ रहा है but not differentiable at -1, 1. Continuous, it is this condition is satisfied, but it is not differentiable. But I think for the Rolle's theorem, all the concepts, all the properties should be satisfied. It should be continuous, and it should be differentiable, and it should be actually. And after getting this thing, C value should lie on the given interval also. Okay. So, but before getting this thing, two important concepts should be satisfied, and that is continuous and this differentiability. Okay. Here, according to this question, this given function is continuous, very good, but not differentiable. So, this given function, for this given function fx equals to mod x, Rolle's theorem is not applicable. Just write the statement.
So Rolle's theorem is not applicable. ऊपर लिख दो, Rolle's theorem is not applicable. ठीक है, स्टेटमेंट लिख दो. So Rolle's theorem is not applicable. ये जो गिवन फंक्शन है उसके ऊपर आप Rolle's theorem यूज नहीं करते हैं, because this given function is not differentiable in the given interval. Okay? क्योंकि जीरो में तो हम लोगों ने चेक किया है, एंड जीरो इज लाइंग बिटवीन दिस -1 एंड 1, तो जीरो में डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, तो कैसे हम लोग रोलेस थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल मतलब अप्लाई करें? वी कांट अप्लाई दिस रोलेस थ्योरम हियर, राइट? नाउ नेक्स्ट, fx equals to 3 plus x minus 2 whole to the power 2 by 3. Okay, in close interval 1, 3. ठीक है? That means here also the same thing. You have to check the applicability. So for getting this applicability, continuous should be checked and this differentiability should be checked. Okay. So here f dash x डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए LHD RHD भी कर सकते हैं. ठीक है, अब पर्टिकुलरली कौन से पॉइंट में करें, वो पॉइंट तो मॉड्यूलस फंक्शन था, उसमें तो मुझे मिल गया था कि जीरो में करना है, बट हियर दिस पॉइंट इज नॉट गिवन एंड 1 and 3, बिटवीन दिस 1 and 3 that means millions of points are there. Okay, so particularly in which point that we should check the differentiability here? We don't have this link, we don't have the idea actually. Now, in this case, whenever these points are not given, whenever just you are not getting the idea in which point that differentiability should be checked, then the common process, that means the normal process should be followed. F dash x equals to, देखो ये 3 differentiation 0, that means यहाँ पर ये 2 by 3 x minus 2 whole to the power 2 by 3 minus 1. So that means f dash x equals to 2 by 3 x minus 2 minus 1 by 3, I think. So that means 2 by 3 whole by x minus 2. That means ये x वाला जो फ्रैक्शन है, that means पार्ट है, वो डिनोमिनेटर में आ गया है, डिनोमिनेटर में आ गया है. तो जब x का एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आ गया है, नाउ यू टेल मी, is there any value of x? Is there any value of x for which this f dash x is going to be undefined? यहां पर x का ऐसा कुछ वैल्यू है जिससे f dash x जो है वो अनडिफाइंड हो जाए, मतलब इंफिनिटी आ जाए, दैट मीन डिफाइन ही नहीं कर सको, ऐसा कुछ है x का वैल्यू? हाँ है, x का वैल्यू 2 पुट करो, 2 minus 2 डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, f dash x का वैल्यू इंडेफिनिट आ रहा है. Here f dash x equals to infinity at x equals to 2, मतलब x equals to 2 में जो f dash x है, डिफरेंशिएशन है, वो डेफिनेट नहीं आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है. सो दैट मीन्स x equals to 2 ये इस इंटरवल में भी लाई करता है, 1, 3. ओके, सो at x equals to 2, which belongs to open interval 1, 3, fx is not differentiable. डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, आंसर तो इंफिनिटी आ रहा है ना. ओके, सो fx is not differentiable, no. So fx Rolle's theorem is not applicable. Rolle's theorem is not applicable. डिफरेंशिएबल कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट इज नॉट एप्लीकेबल. यहां पर तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए तो सब सेटिस्फाई तो होना चाहिए, है कि नहीं? नाउ वेरीफाई रोलेस थ्योरम, वेरीफाई रोलेस थ्योरम, वेरीफाई रोलेस थ्योरम next.
वेरीफाई रोलेस थ्योरम, दैट मीन्स रोलेस थ्योरम को आपको वेरीफाई करना है फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ऑन क्लोज इंटरवल 1,3। ये गिवन इंटरवल है 1,3। सो रोलेस थ्योरम आपको वेरीफाई करना है। सो गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी नीड नॉट टू बी चेक्ड बिकॉज ऑलरेडी दे आर कंटिन्यूअस एंड द डिफरेंशिएबल आल्सो। दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल फंक्शन ए polynomial function always continuous and differentiable in 1,3. Continuous and differentiable. So fx equals to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is continuous at close interval 1,3 and differentiable at open interval 1,3। ये चेक करना जरूरत है नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस, और क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, जहां पर भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिखाई दे जस्ट राइट द डायरेक्ट स्टेटमेंट। फिर एफ ऑफ 1 निकाल के देखिए, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। आंसर कितना है 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, दैट मीन्स 0। एफ ऑफ 1 तो 0। एफ ऑफ 3 देखो कितना है 3 cube minus 6 into 3 square plus 11 into 3 minus 6. So that means 27 minus 54 plus 33 minus 6. That means this will be minus 27 and plus 27. Answer is 0. So यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि f of 1 और f of 3 इक्वल आ रहा है। दैट मींस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। रोलेस थ्योरम स्टेटमेंट सेटिस्फाइड। कंटिन्यूअस satisfied, differentiable satisfied. So all the conditions are satisfied. Now you can apply the Rolle's theorem. Applicable, that is applicable. So now ये तो हो गया, सब कुछ वेरीफाई हो गया। अब ये मिटाओ। Now f dash x equals to, now you need to find the value of c. c का एक वैल्यू, मतलब डेट मीन्स x का एक वैल्यू निकालना है जो 1,3 इंटरवल में लाई कर रहा है। सो f dash x equals to 3x square minus 12x plus 11. So f dash x equals to 0. 3x square minus 12x plus 11 equals to 0. यहां से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो। तो यहां पर मिडिल टर्म तो इसका होगा नहीं शायद, है कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय रूट ओवर ट्वाइस a, x इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 माइनस 33 इंटू 4
132 132 132 by 6. That means x equals to 12 plus minus 144 minus 32. That means 12 by 6. So x equals to 12 प्लस माइनस इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 बाई 6. अगर मैं 2 कॉमन ले लूं अच्छा 2 प्लस माइनस 1/3√3. दैट मीन्स 2 प्लस माइनस 1/√3. अच्छा यहां पर x का वैल्यू क्या आ रहा है देखो. सो x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 1/√3. इंटरवल क्या है 1,3. ओके. अब यहां पर ये तो फ्रैक्शन आएगा है कि नहीं. ये फ्रैक्शन आएगा. अब 2 प्लस करके अगर मैं कोई फ्रैक्शन यूज करूं तो आई थिंक दैट विल लाई बिटवीन 2 and 3. अब 2 के साथ कोई भी फ्रैक्शन ऐड हो तो 2 और 3 के बीच लाई करता है. अब 2 से मैं कोई भी फ्रैक्शन माइनस करूं वो 1 और 2 के बीच लाई करता है. तो दैट मीन्स अल्टीमेटली द वैल्यूज ऑफ x आर लाइंग बिटवीन 1 and 3 है. तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू निकला ये लाई करता है किसमें ओपन इंटरवल देना है 1,3. दैट मीन्स ये C है ये C है. ठीक है. 2 प्लस माइनस 1/√3. दैट मीन्स दो वैल्यू मिला है यहां पर 2 प्लस 1/√3 एंड 2 माइनस 1/√3. ओके. सो रोलेस थ्योरम वेरीफाइड. रोलेस थ्योरम वेरीफाइड हो गया. वेरीफाइड. ठीक है. क्योंकि यहां पर C जो पॉइंट है उसका जो वैल्यू है वो गिवन इंटरवल में लाई कर रहा है. अब आते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में. वेरीफाई द रोलेस थ्योरम फॉर fx equals to. Verify the Rolle's theorem for fx equals to. Verify the Rolle's theorem for fx equals to. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x प्लस cos x माइनस 1. sin x प्लस cos x माइनस 1. sin x plus cos x minus 1 on 0, pi/2. That is a given interval. So fx equals to sin x plus cos x minus 1 for all x belongs to 0 to, that means first quadrant, 0 to pi/2. that means what first quadrant. यहां पर x का जो वैल्यूज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आप बिठाएंगे एंगल्स. तो मुझे बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं वैल्यूज चूज करूं sin x और cos x का वैल्यू कभी भी अनडिफाइंड आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट से चार्ट याद करो क्लास 10 में जो चार्ट आपको मिला था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री. तो यहां पर तो सब एंगल्स के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको तो वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा. ठीक है. यहां पर जो जिसका वैल्यूज आपको पता हो वो तो वैल्यूज तो मिलाएगी. जैसे दैट मीन्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब का वैल्यूज आपको पता है. बीच बीच में जो वैल्यूज है किसी वैल्यू जैसे 75 डिग्री इसका वैल्यू आप कंपाउंड एंगल यूज करें. दैट मीन्स यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x और cos x कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा. याद रखना. ठीक है. सो दैट मीन्स ये sin x और cos x कंटिन्यूअस होगा
किस इंटरवल में, 0 से π/2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहां पर लिखो हियर sin x and cos x आर कंटिन्यूअस, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट में कंटिन्यूअस इन 0, π/2, दैट मीन्स 0 से लेके π/2 में कुछ भी वैल्यू आप चूज करें, sin x और cos x ये दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, दैट मीन्स वो LHL और RHL वो सब सेम होगा। सो sin x एंड cos x आर डिफरेंशिएबल ऑल्सो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल इन 0, π/2, उसको चेक करना और जरूरत नहीं है। sin x और cos x फंक्शन जब दिया जाएगा आपको तो वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही। ठीक है, तो यहां पर sin x और cos x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 तक लाई करेगा। ठीक है, अब एंगल कुछ भी आप पुट करें, ये सब वैल्यू जो है -1 से लेकर 1 तक ही आएगा। sin x और cos x फंक्शन जो है अगर न्यूमरेटर में रहे तो ये सब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ये सब होता ही है, रेडीमेड आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, जरूरत नहीं है, नो नीड टू चेक दिस थिंग। ओके, ये सब जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर π/2, सो कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंस। सो fx इज, अब fx जो गिवन है इसमें तो sin x और cos x ही है, sin x प्लस cos x -1 इज कंटिन्यूअस एट 0, π/2 and differentiable at open interval 0, π/2. Okay, हो गया। Now f of 0 कितना होगा, sin 0 प्लस cos 0 -1, तो sin 0 मतलब क्या है, 0, cos 0 मतलब क्या है, 1 है, अल्टीमेट आंसर क्या है, 0। f of π/2, तो sin π/2 cos π/2 -1, sin π/2 मतलब 1, cos π/2 मतलब 0, तो 1 - 1 0। तो यहां पर देखो f of 0 इक्वल्स टू f of π/2 भी आ रहा है, रोलेस थ्योरम का थर्ड पार्ट भी यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ अब शुरू करो। नाउ f डैश x निकालो। अब c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू मुझे वेरीफाई करना है वो गिवन इंटरवल में लाई करता है कि नहीं। ठीक है, एक c पॉइंट निकालना है। सो f डैश x इक्वल्स टू cos x माइनस sin x, और 1 तो होगा नहीं। नाउ f डैश x इक्वल्स टू 0, cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 10x इक्वल्स टू 1 को 10 π/4 लिख सकते हैं, दैट मीन्स x इक्वल्स टू π/4 आ रहा है। ये क्या 0 और π/2 के बीच लाई करता है, ऑब्वियसली लाई करता है। π/4 मतलब तो है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो 0 और 90 के बीच तो आ रहा है, दैट मीन्स c का वैल्यू जो निकल रहा है वो गिवन इंटरवल में लाई कर रहा है, दैट मीन्स ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सो रोलेस थ्योरम verified for given function। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। f such that अच्छा, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लो। fx इक्वल्स टू sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। fx इक्वल्स टू सेम ही है, fx equals to sin to the power 4x plus cos to the power 4x और
इंटरवल पे 0 और पाई बाई 2। सो एफ एक्स है साइन, यहां पर भी सेम साइन और कॉस रिलेटेड फंक्शन है, ऊपर से फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो यहां पर होगा ही। ओके, हियर साइन एक्स एंड cos x are continuous and differentiable. So fx is continuous at, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में हम लोगों ने किया है, साइन एक्स फंक्शन और cos x फंक्शन जो है हम लोगों ने किया है, देख लेना वहां से। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 0, पाई बाई 2 एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0, पाई बाई 2। ठीक है, एफ ऑफ 0 कितना होता है? एफ ऑफ 0 भी यहां पर 1 आ रहा है, एफ ऑफ पाई बाई 2 इसका आंसर भी 1 आ रहा है। सो दैट मींस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाई 2, दोनों ही यहां पर 1 आ रहा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। नाउ एफ डैश एक्स यहां पर अगर मैं निकालू 4 साइन क्यूब एक्स कोस एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स कोस एक्स प्लस 4 cos क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स, ये एफ डैश एक्स है। अब एफ डैश एक्स सी का वैल्यू निकालना है, सो इसके लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ये तो आपको करना है कि नहीं? Now f dash x equals to 0. That means 4 sin cube x cos x minus 4 cos cube x sin x equals to 0. दोनों से देखो 4 sin x cos x शायद कॉमन आ रहा है, तो इधर रह गया sin square x माइनस cos square x equals to 0, है कि नहीं? तो एक काम कर सकते हैं, 4 sin x cos x, इसको जो है हम लोग cos square x माइनस sin square x लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है, सामने माइनस दे दो, cos square x माइनस sin square x तो cos twice x है ना फॉर्मूला। सो -2 sin x cos x और इधर cos twice x, ये जो है ये किसका फॉर्मूला है? ये sin twice x का है ना, और ये cos twice x। तो यहां पर देखो sin 4x आ रहा है इक्वल्स टू 0, sin 4x इक्वल्स टू 0। आपको ये इंटरवल क्या दिया गया था? 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है? तो दैट मीन्स sin 4x, 0 को हम लोग sin पाई लिख सकते हैं, दैट मीन्स 4x इक्वल्स टू पाई, x इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये किसके अंदर लाई कर रहा है? ओपन इंटरवल 0, पाई बाई 2 में लाई कर रहा है कि नहीं x का वैल्यू? अपन को सर 0 की जगह तो मैं sin 0 भी लिख सकता हूं, लिख सकते हो sin 0, sin 0 0 0, x का वैल्यू क्या आएगा? 0 0, तो ओपन इंटरवल 0, पाई बाई 2 में आना चाहिए, है कि नहीं? तो ओपन इंटरवल 0, पाई बाई 2 में तो x इक्वल्स टू 0 तो आएगा नहीं, ठीक है? तो 0 कैंसिल। अब 0 की जगह दूसरा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं? साइन पाई लिख सकते हैं, और साइन पाई लिख के देख रहे हैं कर x का वैल्यू पाई बाई 4 आ रहा है, दैट मींस ये तो लाई कर रहा है गिवन इंटरवल में। सो रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। ओके, f such that close interval -5, 5 to r।
नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। देखो f such that -5 to 5 2r मतलब रियल नंबर, ओके, is differentiable and f dash x doesn't vanish मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब क्या होगा, f dash x कभी जीरो नहीं होगा, यहाँ पर f dash x कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं होगा, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। अगर डिफरेंशिएबल होता है तो डिफरेंशिएशन का कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, जीरो तो नहीं है यहाँ पर, तो रिमेंबर दिस वर्ड, डजंट वेनिश मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो एनीवेयर। Prove that f of 5 not equals to f of -5. So here f says that ये जो फंक्शन है is differentiable. That is f dash x exists on -5, इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। We know that f dash x जो है वो रोलेस थ्योरम में क्या था, लोरेंस हो लैग्रेंजेस हो, कैसे लिख सकते हैं, f of b माइनस f of a बाई b माइनस a, ऐसा कुछ था फॉर्मूला। तो यहाँ पर a और b कौन सा था, इंटरवल में जो फर्स्ट है वो a है, सेकंड जो वैल्यू है वो b है, तो यहाँ पर जो है f डैश x इक्वल्स टू f of 5 माइनस f of -5 -5 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिंस f डैश x जो है वेनिश नहीं होता है, दैट मीन्स f डैश x का आंसर कभी भी जीरो नहीं होगा, वेनिश नहीं होगा, दैट मीन्स हियर व्हाट, नॉट इक्वल्स टू जीरो। So that means f of 5 minus f of -5 by 5 minus 5 not equals to 0। डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो तो जीरो हो गया, माइनस f of -5 नॉट f of 5 f of -5 नॉट इक्वल्स टू जीरो था ना, साइड चेंज करके उधर लेके चले जाओ, तो f of 5 नॉट इक्वल्स टू f of -5। दिस इज प्रूव्ड। कैसे पापा, अच्छा पापा 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 आसो पापा आसो, then next question, verify Lagrange's mean value theorem for the function fx equals to, verify Lagrange's mean value theorem, verify Lagrange's mean value theorem, दोनों का प्रोसेस सेम ही है, एक ही है, तो जस्ट वो f of a और f of b इक्वल होगा तो रोलेस थ्योरम, नॉट इक्वल होगा तो Lagrange's mean value theorem। सो वेरीफाई LMV Lagrange's mean value theorem for fx equals to
एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, इंटरवल क्या दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल है, algebraical polynomial. So obviously this algebraical polynomial will be continuous and the differentiable. Okay, so fx equals to x cube minus 5x² minus 3x for all x belongs to this. Here f of 1 cube minus 5 into 1 square minus 3 into 1, आंसर क्या है, 1 minus 5 minus 3, that means minus 7. f of 3 cube minus 5 into 3 square minus 3 into 3, तो क्या आएगा, 27 minus 45 minus 9 तो इसका आंसर जो है 45 और 9, 27 minus 54, that means minus 27, इक्वल तो नहीं आ रहा है. सो f of 1 नॉट इक्वल्स टू f of 3. सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है. नाउ हियर पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं कि जो पोलिनोमियल है वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है. पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट में, दिस, एंड डिफरेंशिएबल एट किसमें, डिफरेंशिएबल किसमें, ओपन इंटरवल 1,3 में. तो 3 प्रॉपर्टी, ये एक, कंटिन्यूअस दूसरा, डिफरेंशिएबल तीसरा. ठीक है. अब लास्ट वाला जो है सी का वैल्यू. नाउ f dash x इक्वल्स टू, f dash x क्या है, 3x² माइनस 10x माइनस 3. ओके. सो LMB में जैसे रोलेस थ्योरम में f dash x इक्वल्स टू 0 होता है, और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू में f dash x इक्वल्स टू f of b माइनस f of a by b माइनस a, ये लिखना है. ओके. तो f dash x मतलब 3x² माइनस 10x माइनस 3, f of b मतलब f of 3 माइनस f of a मीन्स f of 1 by 3 माइनस 1. f of 3 का वैल्यू आपने निकाल कर रखा है, देखो f of 1 भी है, बिठा दो, मिल जाएगा, है कि नहीं. सो 3x² माइनस 10x माइनस 3, f of 3 मतलब तो माइनस 27, माइनस ऑफ माइनस 7 बाई 2. सो 3x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू minus 27 plus 7 by 2, that means minus 10. So 3x² minus 10x minus 3, और इधर माइनस प्लस 10 होके इधर आ गया, इक्वल्स टू 0. So 3x² minus 10x plus 7 equals to 0. So 3x² minus 3x minus 7x plus 7 equals to 0. That means x minus 1 और 3x minus 7 equals to 0. ये दो फैक्टर मिला. That means x का वैल्यू क्या क्या मिला, so x equals to 1, x equals to 7 by 3. अब जो है इंटरवल तो है 1,3, है कि नहीं. x का वैल्यू 1, ये तो बिलोंग नहीं करता है ओपन इंटरवल 1,3 में, क्योंकि जो c का वैल्यू है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग होना चाहिए. तो x का वैल्यू 1 तो ओपन इंटरवल 1,3 में बिलोंग नहीं करता है.
हाँ 7/3 करता है, 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, ऑब्वियसली करता है, इसमें 1,3। सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। नीचे स्टेटमेंट लिखो, सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, fx सेम क्वेश्चन, वेरीफाई LMV मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर fx इक्वल्स टू x माइनस 2 sin x। वेरीफाई रोलेस दैट मीन्स लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर fx इक्वल्स टू x minus 2 sin x on minus pi comma pi। fx equals to x minus 2 sin x on minus pi comma pi। ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपको वेरीफाई करना है। नाउ fx equals to x minus 2 sin x, it is given। f of माइनस पाई, इसका आंसर क्या होगा? माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई। ठीक है, तो साइन पाई तो 0 है, तो दैट मींस इसका आंसर जो है माइनस पाई आएगा। f ऑफ पाई ये पाई होगा एंड 2 साइन पाई, इसका आंसर जो है पाई होगा। तो दोनों का कंबाइन करके लिख सकते हैं f ऑफ माइनस पाई नॉट इक्वल्स टू f ऑफ पाई। तो मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। नाउ fx इक्वल्स टू x माइनस 2 sin x। तो मैंने बोला था कि साइन फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल भी होगा, और x ये तो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो वैसे ही कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो दैट मींस यहां पर चेक करना जरूरत है नहीं, is continuous at minus pi comma pi and differentiable, जरूरत नहीं है differentiable at, क्योंकि यहां पर एक पोलिनोमियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है एंड पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। सो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट ही लिखेंगे, जरूरत नहीं है सब यहाँ पर लिखना। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। नाउ f डैश x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos x। सो f डैश x इक्वल्स टू ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a, दैट मीन्स f ऑफ पाई माइनस f ऑफ माइनस पाई बाय पाई माइनस माइनस पाई, और f डैश x मतलब 1 माइनस 2 cos x। f ऑफ पाई क्या निकला था? f ऑफ पाई तो पाई निकला था, माइनस f ऑफ माइनस पाई क्या निकला था? माइनस पाई निकला था, बाय 2 पाई। 1 माइनस 2 cos x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 2 पाई, that means 1 और ये 1 ये कैंसिल, that means minus 2 cos x equals to 0।
इट मीन्स cos x इक्वल्स टू 0। अब 0 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, है कि नहीं? देखो 0 को तो हम लोग cos पाई बाई 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? 0 को हम लोग cos पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर x का वैल्यू, सो x का वैल्यू क्या आ रहा है? सो x का जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 आ रहा है और ये लाई भी कर रहा है इंटरवल में, देखो लाई भी कर रहा है। सो LM भी वेरीफाइड, मतलब C का वैल्यू भी यहां पर इंटरवल में आ रहा है। दैट मींस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो you should write the statement here that this LMB is verified for this given function in the given interval. So in this lecture we'll have to stop here. I think this chapter is completed. Okay. Application of differentiation chapter is completed. From the next lecture we will start some different type of chapters. It may be LPP, it may be probability, it may be determinant matrix, okay, some that kind of chapters. But the integration, just let us take some rest from the calculus part, okay, and just do this probability and this LPP, okay. Just you can send me the message that you can send me your confirmation that you should start this calculus part, this integration part, or this part, okay. Whatever the actually this request will be coming, I will start that chapter instantly, okay. ठीक है, कमेंट में बोल देना कि सर ये चैप्टर शुरू करिए, मैं वही चैप्टर शुरू कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ओके, बाय, जय हिंद। And if you like my videos, then subscribe, like and share my channel. Okay, thank you very much.